Assalamu alaikum and thanks for watching my lectures, my videos. We are basically in discussion with the production theory, and a very important concept component of the production theory is the cost. We will discuss the different lectures on the cost, what is the cost, shapes, and then what are the definitions of the cost and many other things. So we are starting with the cost minimization. Cost minimization is very self-explanatory word. That's mean every producer, every production manager, every firm wants to minimize their cost, because what will happen, what will be the chain when they will have the minimized cost on the production. So definitely they can earn the more revenue, and they can, because if the cost will be minimized, so the price will be less and the people will demand more, so that means their revenue will increase, and as well as the profit will be the maximized, because if the cost will be less, so that they can enjoy the more profit. So from this perspective, the concept of the cost minimization is very important. So we start with the first of all, how can we decide the cost line of the budget? Cost line, cost equation means we start from this. Let's suppose if the firm is basically producing, that's mean Q, and which is a function of the labor and capital. So we should understand that when these are the inputs, so they have cost. The inputs will be hired, will be engaged, will be purchased on the basis of the cost, because के जब वो उन्हें लेगा तो वो उसकी कॉस्ट पे करेगा और वो प्रोडक्शन की कॉस्ट में शामिल हो जाएंगी. क्वेश्चन इस बात का है कि वो जो इनपुट्स वो अपने प्रोडक्शन में यूज़ कर रहा है उनकी कॉस्ट को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं. सो वेरी सिंपल, वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ द लेबर and other factor of production is the capital. So we further generalize and we discuss that what should be the cost of the labor and what should be the cost of the capital, and how can we express mathematically these costs. So before we start this concept, we must have to understand the cost definitions, the cost differentiation in the other subject, in the economics. तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज के इकोनॉमिस्ट जो है वो जो सिंपल एक्सप्रेसिट कॉस्ट आती है उसको अपनी एनालिसिस में कंसिडर नहीं करते. इकोनॉमिस्ट बेसिकली मोर फोकस्ड होते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, क्योंकि इकोनॉमिस्ट जो है वो इस रिसोर्सेज की मैनेजमेंट पे बात कर रहे होते हैं. तो वो इस बात को जानना चाहते हैं कि वेदर आवर रिसोर्स आर ट्रूली rightly allocated or not. So हमें ये पता चला कि अगर वो मोर फोकस होते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, इम्प्लिसिट कॉस्ट पे, तो उनकी नज़र में कॉस्ट क्या होनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड दिस कि लेबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कॉस्ट बाय वेज, और वेज इज़ डिनोटेड बाय W, and similarly the capital is denoted by the, let's suppose, rent, and rent is denoted by the R. अब अगर यही बात है तो हमें इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग की कॉस्ट का डिफरेंस समझना है. अकाउंटिंग के अंदर जो कॉस्ट होती है वो सिंपल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो कि उसके ऊपर वॉट एवर एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन द लेबर और कैपिटल, वो दे कंसिडर एज ए कॉस्ट, देयर इज अ मनी कॉस्ट, द सिंपल दे कैन से दैट. बट इन द इकोनॉमिक्स the cost is more than the accounting cost, because कि वो explicit cost के साथ implicit cost को भी अपना पार्ट बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये एक इकोनॉमिक कॉस्ट बनेगी. explicit cost को हम डिफाइन करते हैं एज ए अकाउंटिंग कॉस्ट, जिसमें हम ये बात कह सकते हैं कि जो भी वॉट एवर अमाउंट हैज़ बीन इनकर्ड, दैट इज़ कॉल्ड द बेसिकली अकाउंटिंग कॉस्ट. एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम कहते हैं बेसिकली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. के जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपने एलिमेंट्री क्लास में पढ़ी होगी कि आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जो चीज़ आप फोरगो करते हैं, दैट इज़ योर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. लेट्स सपोज
So if you have the 10 rupees and you are purchasing the let's suppose the toffees of the 10 rupees, so what other thing you can also purchase by the 10 rupees, so this is your the opportunity cost. So what is happening, तो यही एक इस तरह मिसाल दी जा सकती है कि let's suppose if you are engaged in a job and you are taking the 50,000 rupees per month in a 1 year. Let's suppose you are earning the specific amount, but if you are engaged some other business and you are holding your business, so whatever you are earning from that business, that's mean your opportunity cost in comparison with your job. So in the economics we will make the combination of these two costs, so that's why definitely it will be the more than the accounting cost, the simple cost. हम इस बात को इसलिए समझ रहे हैं कि जब हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन पे जाएंगे, जब हम कॉस्ट को आगे अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको पता हो कि पीछे इकोनॉमिस्ट की सहन में सेंस क्या चल रहा होता है, क्या चीज़ चल रही होती है. सो दीज आर द सिंपल डेफिनेशंस, implicit and explicit. But now we come on our point, we discussion that what is our case. Our case is a production. When it is production, so we have the two factors of production, labor and capital. And when there are two production of the capital, so we understand that what will be our opportunity cost. So let's suppose, so first of all we discuss about the wage. Wage mean, let's suppose if labor is demanding, let's suppose 20,000 per month, so it is a very simple accounting cost. Okay, so what is the other opportunity cost will be? The amount of a labor can earn in their best alternative employment. So वो ये बात करेगा कि हमारी कॉस्ट ये बनती है कि एक वो लेबर जो हम रख रहे हैं उसको हम 20,000 देते हैं, और ये अदर एम्प्लॉयमेंट में अगर होता बेस्ट अल्टरनेटिव वे में, तो ये वहाँ से कितना अर्न कर रहा होता. The both things will be called the economic cost of the labor. Similarly, we are discussing in the capital. The capital means we are paying 50 lakh rupees per year for a specific machine as a rent. So someone would like to pay for its use. Other person can also use this machine, and what he or she can pay for that machine. So this will be the opportunity cost. So we have discussed about the cost, and we have discussed how can we represent by the wage and the rent. So we make basically the cost line, and cost line means we are saying that the cost is equal to labor plus capital. Definitely if you are using two things, so we are saying that whatever amount we are paying for the capital, whatever amount we are paying for the labor, so that's mean it is our cost. But here we are not using the amount, we are using these numbers. How this numbers will convert into the cost? Very simple. If we will multiply by these prices, so they will become the amount. Let's suppose if we are using the 5 machines, and what is the rent of the single machine, so we will multiply by the rent of the capital, so it will become the cost. We are using the 100 labor. What is the salary of the each labor? This is salary of the W. So if we will multiply with their wages, so it will be the cost. So if the production process 10 machines, 100 labor, and there we multiply with their prices, so it will become the total cost. Very simple idea. Now it comes on that this is a cost, this is a definition. So what is our topic? Topic is minimization. अब प्रोडक्शन मैनेजर ये समझता है कि मुझे सब चीज़ों का पता चल गया है, मैं अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कैसे करूं. मिनिमाइज़ करने का मकसद ये है, अब मिनिमाइजेशन का मकसद आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लें कि मिनिमाइजेशन मीन कि हर प्रोड्यूसर की अपनी इन्वेस्टमेंट की एक लिमिट होती है, वो एक लिमिटेड कॉस्ट को बेयर कर सकता है. तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मिनिमाइजेशन? मिनिमाइजेशन मीन कि वो अपनी जो एक लिमिटेड कॉस्ट जो उसने डिसाइड कर ली है, उस कॉस्ट के अंदर वो अपने कॉस्ट को मिनिमाइज भी करेगा और मैक्सिमम पॉसिबल लेबर एंड कैपिटल को हायर कर सकेगा. दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव. दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर. दैट्स मीन इन द लिमिटेड कॉस्ट how a production manager can hire the maximum labor and can employ the maximum capital in the limited cost. So limited cost should be minimized. So
we will understand this idea by the graphical representation first, then we will solve by the mathematically. First of all, we are explaining it graphically, in which we are saying that, let's suppose if we have the graph and we are saying that we have the two inputs, labor and capital represented by the K. So what is happening? When you have this labor, when you have this capital, and you have the specific cost, let's suppose your cost is C naught, fixed cost, $100, $100, $100, whatever is this. So you will have a line. This is basically called the cost line. This is called the ISO cost. ISO cost means at all the line your cost is fixed. Okay, so what are you doing basically? You are saying that if this is your the ISO cost, so you will be here, let's suppose you will be here, so you are saying that कि मैं इतना capital use करूँगा, इतनी labor use करूँगा. Okay, fine. And my cost is limited, and you will be in the under the cost, you will be in the on the cost or under the cost. Similarly, if you are saying, yeah, I want to be here, so you will say I will use that amount of the capital and that amount of the labor, but our cost will not exceed, we will be on the cost or under the cost. So this is your cost line, ISO cost. You can draw by using this thing. Okay, now the concept is this. This is the cost, and you are basically deciding the production. So minimization concept can be achieved when we combine the two curves together, and the one curve is the cost and one curve is the isocont, and we discuss in detail what is isocont. Isocont is also combination of the labor and capital, which gives the same level of production. तो अगर हम isocont को और iso cost को टेंजेंट करवा देंगे इसी पॉइंट पे, तो वो हमारा ऑप्टिमल पॉइंट होगा, ऑप्टिमल नंबर ऑफ लेबर एंड कैपिटल होगा, जो हमारी कॉस्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा और हमारी प्रोडक्शन को भी सेटिस्फाई कर देगा. अब देखते हैं ये कैसे होगा. लेट्स सपोज इफ़ यू हैव द अनदर कॉस्ट. अगर ये कॉस्ट इससे नीचे है तो इट्स मीन कि इस कंडीशन में जो रेट है ना, वो ये पैरेलल है, रेट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल सेम है, लेकिन प्रोड्यूसर लेस कॉस्ट पे प्रोड्यूस करना चाहता है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है. अगर ये कॉस्ट ऊपर है और स्लोप सेम है, तो दैट्स मीन द मार्केट में जो रेट है वेज और कैपिटल का वो सेम है, लेकिन एक प्रोड्यूसर उसके पास उससे ज़्यादा कॉस्ट मौजूद है. अब हम देखते हैं कि आइसोकॉन्ट के वो कंज्यूमर प्रोड्यूसर कहता है कि मुझे जो है आप क्वांटिटी जो है वो 100 प्रोड्यूस करके दें. ये 100 उसका टारगेट है, और 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस करने पे वो इस बात को कहता है कि मेरे पास जो कॉस्ट है मुझे उसको मिनिमाइज़ करना है. मुझे 100 कॉस्ट है, मेरे पास मुझे ऐसे लिमिटेड पैसे लगाने हैं कि जिसके अंदर मुझे एफिशिएंट लेबर और कैपिटल मिल जाए कि मेरी कॉस्ट भी मुझे प्रोडक्शन 100 अचीव हो जाए और मेरे पैसे भी इसमें कम लगें, ताकि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट एंजॉय कर सकूँ. अब इस कंडीशन में लेट्स सपोज वो फ़ौरन ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढेगा कि कौन से कॉम्बिनेशन जो है वो 100 आउटपुट दे सकते हैं, और वो हमारे पास आइसोकॉन्ट होता है. लेट्स सपोज वी आर ड्राइंग आइसोकॉन्ट, एंड आइसोकॉन्ट लाइक यू नो डैट कि वो एक कॉन्वेक्स कर्व होता है, और अगर वो एक कॉन्वेक्स कर्व होता है तो वी कैन से डैट कि इट मे बी लुक लाइक दिस, अनदर आइसोकॉन्ट वी कैन ड्रा हेयर लाइक दिस. सो ये एक अपर आइसोकॉन्ट है. अब मिसाल के तौर पे ये जो आइसोकॉन्ट है अगर ये 100 है, तो डेफिनेटली ये आपका जो आइसोकॉन्ट होगा वो 100 से ज़्यादा होगा, यानी कि 120 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा होगा, 130 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा होगा. क्योंकि हमने आइसोकॉन्ट मैप में देखा था कि जैसे हम नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट करेंगे तो हमारा जो है प्रोडक्शन में इजाफा नज़र आएगा. अब इस बात को हमने समझना है कि यहाँ पर हुआ क्या है. लेट्स सपोज इफ़ वी आर टेकिंग द 3 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 इंटरसेक्शन, पॉइंट नंबर 3 इंटरसेक्शन, पॉइंट नंबर 4 इंटरसेक्शन. अब इन तमाम पॉइंट को हमने एक्सप्लेन करना है. अब जो पॉइंट नंबर दिस है, ये पॉइंट आपको ये बता रहा है कि आप इस वक्त जो कॉस्ट पे हैं
और जो आपकी कॉस्ट जो है लेट सपोज वो है इस वक्त 1000 रुपीज़, और यहाँ जो आपकी कॉस्ट है वो आपके पास है 1500। कॉस्ट डेफिनेटली आपकी ज़्यादा है और यहाँ कम है। ये बता रहा है कि ये जो लाइन आपकी आइजो कॉस्ट है, यहाँ पर भी आपको लेबर और कैपिटल मिल रहे हैं, और आप अपने आइजो कॉन्ट पे जब टच कर रहे हैं, टेंजेंट बना रहे हैं, दैट्स मीन कि आप इस पॉइंट पे प्रोडक्शन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और कॉस्ट भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस पॉइंट पे कॉस्ट कितनी आ रही है 1000, इस पॉइंट पे प्रोडक्शन कितनी आ रही है 100 यूनिट्स। ओके, सो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन बन गया कि भाई 1000 रुपये कॉस्ट लगा के हम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब वी डिस्कस ऑन दिस पॉइंट। ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट कह रहा है कि यू आर हाउ मेनी यूनिट्स यू आर प्रोड्यूसिंग, बेसिकली यू आर प्रोड्यूसिंग 100 units. The cost is 1500. Okay, when it is this, so that's mean कि आपको यही 100 यूनिट्स तो एक लेस कॉस्ट पे मिल गए थे, तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर और कैपिटल क्यों उठाएंगे? ये तो एक्सपेंसिव पड़ रहा है। सिमिलरली आप इससे ऊपर चलते हैं, तो इससे ऊपर वाला जो यूनिट है उसके अंदर आपको कॉस्ट कितनी लग रही है 1500, लेकिन आपको उससे ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। तो अगर कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो आउटपुट भी तो ज़्यादा मिल रहा है। तो डेट्स मीन कि इस ग्राफ से हमें समझ में आ रही है बात कि वॉट एवर टेंजेंट इज देयर, वेर एवर टेंजेंट इज देयर, वी कैन से दैट कि दिस इज बेसिकली द ऑप्टिमल कंडीशन, एंड वी एट दिस कंडीशन वी आर सेटिस्फाइंग अवर प्रोडक्शन एंड वी आर मिनिमाइजिंग अवर कॉस्ट। सो वी विल बेसिकली take this point because if the producer target to produce 100 units under the limited cost, because 100 यूनिट्स 1500 में भी पैदा हो रहे हैं, 1000 में भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन हमें 100 यूनिट 1000 में जो पैदा हो रहे हैं हमें ऐसे लेबर और कैपिटल को निकाल के दो। सो फॉर दिस पर्पस वी बेसिकली यूज द लैग्रेंज मल्टीप्लायर सेटअप, एंड बाय यूजिंग द लैग्रेंज मल्टीप्लायर सेटअप वी कैन फाइंड आउट द optimal number of labor and capital by which we can minimize our cost and we can achieve our production target. Okay, so we discussed that if the Lagrange multiplier is there, so mathematically we can set up, that's mean the Lagrange is equal to the cost line, mean WL plus RK plus lambda Q naught minus Q of function लेबर एंड कैपिटल। सो अगर आप ये सेटअप करते हैं तो सबसे पहले आपको इस पूरे सेटअप को चॉइस वेरिएबल नंबर 1 यानी लेबर से इसको आपने मल्टीप्लाई डेरिवेटिव लेना होगा, फिर चॉइस वेरिएबल कैपिटल से आपको लेना होगा, फिर आपको लैम्डा से लेना होगा। व्हेन यू विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन बाय यूजिंग दीज 3 नंबर्स, सो व्हाट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव आप एल से लेंगे तो ये डब्ल्यू आ जाएगा, एल गायब हो जाएगा, ये एज ए कांस्टेंट पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, और ये दोनों एज ए कांस्टेंट ट्रीट होकर एलिमिनेट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा एंड लैम्डा अपनी जगह आ जाएगा, और ये पूरा फंक्शन जो है जब एल से डेरिवेटिव होगा तो क्यू एल इसको हम लिख देंगे। इसी तरह से हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आर आएगा, माइनस आएगा, और ये पूरा फंक्शन जो है वो के से पार्शियली डेरिवेटिव हो जाएगा, एंड व्हेन वी विल थर्ड दिस तो ये पूरी टर्म एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगी, और ये पूरा नंबर जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा क्यू नॉट माइनस क्यू ऑफ एल एंड के। सेकंड स्टेप पे हम इन तीनों को इक्वेट कराएंगे ज़ीरो के, और इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 का नाम देंगे। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम डिवाइड कराएंगे और सॉल्व करेंगे, फिर पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 में। ये जनरल स्टेप्स हैं, आपने जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के जो लेक्चर्स हैं उसमें भी आपने इसी तरह से परफॉर्म किया है, तो आई थिंक सो कि देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज। और जब हम इस पोजीशन पे आ जाएंगे तो हमें जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव जो है यानी कि लेबर, जो ऑप्टिमल लेबर है जो कि प्रोडक्शन का फंक्शन होगी आर क्यू एंड डब्ल्यू का, और जो कैपिटल है ऑप्टिमल स्टार लगा रहा हूँ, स्टार मीन कि ये ऑप्टिमल नंबर होगा, यानी कि हमें लेबर और कैपिटल तो यहाँ पर भी मिल रहे थे लेकिन ये ऑप्टिमल नहीं था, ऑप्टिमल वहाँ जहाँ टेंजेंट बनेगा। तो आर डब्ल्यू एंड क्यू क्या जो है ये हमें फंक्शन मिल जाएगा। तो ये सिंपल लैग्रेंज मल्टीप्लायर का सेटअप है जनरल फॉर्म में, और ये जनरल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है।
मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक छोटी सी मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी की है बॉक्स के अंदर। मैं इसलिए करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो इस लैंग्वेज को समझने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बेसिकली कौन थ्योरी समझ में आ रही थी, ये आगे पता नहीं क्या हो गया मैथमेटिक्स में। तो इसको आसान करने के लिए हमने बहुत सिंपल एक फंक्शन लिया है, वाला फंक्शन अगर यूज़ कर रही है कि लेबर पावर 0.5, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कॉप डगलस फंक्शन है। और अगर उसकी कॉस्ट लाइन ये है, लेट्स सपोज वो $2 पर लेबर को दे रही है और $1 जो है वो कैपिटल को दे रही है। लेट्स सपोज वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। अब हमने सेम स्टेप्स जो यहाँ लिए हैं वो यहाँ पर फॉलो करें। और इसमें क्या हो रहा है देखें आप और से कि एल है, हमने कॉस्ट इक्वेशन को जैसे यहाँ पे रखा था वो यहाँ रख दिया आपने पूरी, और फिर इसके बाद हमने इस फंक्शन को ले लिया। अब मैं डेरिवेटिव लेने में थोड़ा सा आपको समझाता हूँ पहली दफ़ा कि यहाँ पर जब इस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे एल की रिस्पेक्ट से देखेंगे एल का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और यहाँ सिर्फ 2 बच जाएगा और के का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया इस चीज़ का तो ये 2 आ गया, सिंपल। और जब हमने इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव लिया तो लैम्डा और क्यू कांस्टेंट थे, ये गायब हो गए। फिर लैम्डा जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर गया तो यहाँ पर जो बेसिकली आपके पास चीज़ आ गई वो आ गई लैम्डा 0.5, क्योंकि वो आपने एल के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो वो पावर बेस में आ गई और उसमें से 1 माइनस हुआ तो माइनस 0.5 हो गई। और ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था तो ये एज इट इज लगा रह गया। सेकंड स्टेप पे जो आपने के से डेरिवेटिव लिया तो इस कंडीशन में ये चीज़ पूरी 0 हो गई और के का डेरिवेटिव सिंपल 1 आ गया। इसी तरह से आपके पास लैम्डा एज इट इज रह गया और यहाँ पर 0.5 नीचे उतर गया। एल मल्टीप्लिकेशन में था, एज इट इज रह गया और के पे 1 माइनस 0.5 मतलब माइनस 0.5। जब हमने ये दोनों इक्वेशन बना ली तो हमने इनको नाम दिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और याद रखिए कि हमने इनको इक्वल करवाया 0 के। नाउ वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन बाय लैम्डा। लैम्डा से डेरिवेटिव लेने में ये सिंपल ही 0 हो जाना है और ये पूरी इक्वेशन निकल के बाहर आ जानी है। और इसको भी हमने इक्वल करा दिया 0 के और ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी 3। वेरी सिंपल। व्हेन इट इज़ हैपनिंग सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप कि हमने कहा था कि हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस को, इसको इससे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमें ये चीज़ मिल गई। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर लैम्डा था, यहाँ लैम्डा था, ये पूरा जो है 0.5 लैम्डा कैंसिल हो गए। यहाँ पर L की पावर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। अगर हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये सिंपल L की पावर 1 बन जाएगी, ऊपर लेके जाएंगे तो K की पावर 1 बन जाएगी। इस L को जब हम इस 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2L आ जाएगा और K उधर मौजूद होगा तो सेम आ जाएगा। तो आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर A। अब हमने यहाँ लिखा है कि इस A को प्लग करें इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ये है, लेकिन इस तरह प्लग करना है कि एक दफ़ा K की वैल्यू प्लग करनी है 2L और एक दफ़ा L की वैल्यू प्लग करनी है K/2, ताकि जब आप K की वैल्यू प्लग करेंगे तो पूरी इक्वेशन में L रिमेनिंग होगा और नाउ यू विल गेट द ऑप्टिमल फंक्शन ऑफ L एंड व्हेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ द L सो पूरी इक्वेशन में कैपिटल रह जाएगा और नाउ यू कैन गेट द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द K। सेम थिंग वी परफॉर्म हेयर कि पहले हमने इक्वेशन नंबर 3 में K की वैल्यू डाली जो कि 2L थी और हमने इसको सॉल्व किया तो हमें L की जो वैल्यू मिल गई, जो ऑप्टिमल वैल्यू है, जो मिनिमाइज कॉस्ट कर रही है, वो मिल गई Q/√2। सिंपल, आप अपनी कॉस्ट को बताएं और अपने L को निकाल लें। कॉस्ट आप 100 चाहते हैं, 100 लिखें और 100 डिवाइड बाय √2 कर दें, आपको पता लग जाएगा कितनी नंबर ऑफ लेबर को आपने रखना है टू अचीव दिस। ओके, इसी तरह से आपने K की वैल्यू प्लग करी, L की वैल्यू प्लग करी K/2 और सॉल्व किया तो आपके पास आ गया K = Q/2। सो डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू द नंबर ऑफ कैपिटल तो जस्ट यू विल प्लग द 100 को इंटू करेंगे √2 से तो आपको ऑप्टिमल नंबर ऑफ कैपिटल आ जाएगा, कितना आपको जो है वो एम्प्लॉय करना है कैपिटल को। सो this is the concept of the cost minimization and we perform the Lagrange multiplier exercise. So I hope you learn about it. So please don't forget to subscribe our channel and please watch the more videos, economics and statistics. Thank you.